Hello, dear students. Today we will discuss a very important chapter, that is classification of elements and periodicity in properties. Unit number 3, which is totally related to that of the periodic table. Already we know some of the concept related to the periodic table, and we did these concepts in lower classes like 9th and 10th class. So first of all, what is periodic table? Periodic table is the arrangement of known elements according to their properties in a tabular form. Periodic table is the arrangement of known elements जो known हैं according to their properties in tabular form. All we know that in 19th century and before 19th century, there are very much less elements known. Let us study these elements in our book. In book, we have 31 elements in 17th century, and it is easy to study those elements, the properties of those elements, and the various experimental concept of those elements. But nowadays, there are almost 120 elements are there in periodic table, and the arrangement of those elements and the physical properties, chemical properties of those elements are difficult to study systematically. So what is the history of periodic table, how these elements are classified? This is the main thing which we have to clear first of all. This is not in your syllabus, but to strengthen our topic, it is necessary to study these historical developmental concept. First, Lavoisier is the scientist who separate metals and known metals को separate किया Lavoisier ने, first scientist. But this one is also not easy. This one is also inadequate to differentiate the properties of all the elements, because metals also show different properties. So after that, scientist जो आया वो था डोवर्नियर. डोवर्नियर ने क्या किया, तीन एलिमेंट्स का सेट बनाया. ठीक है, 3 एलिमेंट्स का सेट बनाया जिसको हम बोलते हैं ट्राइएड, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ट्राइएड. और उसने क्या बोला कि जो एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट है, atomic weight of middle element is exactly equal to the arithmetic mean of the atomic weight of first and third element. जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के arithmetic mean का वैल्यू था, that is exactly equal to the atomic weight of middle element. उस टाइम जितने भी एलिमेंट थे डोवर्नियर के टाइम, उसने उनके एलिमेंट्स के 3 ग्रुप के ट्राइड बनाना शुरू किए, सेट बनाना शुरू किया. पर फिर वो फेल हो गया क्योंकि सारे एलिमेंट्स के ट्राइड नहीं बने उससे. तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, डी चैन कॉर्टवाइस ने एलिमेंट्स को अरेंज किया और एक सिलिंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट्स दिया. वो भी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ. उसने डी चैन कॉर्टवाइस ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इन जो है अरेंज किया था. फिर उसके बाद जो आपने लोअर क्लासेस में सुना होगा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ऑक्टेव्स मीन सेट ऑफ 8 एलिमेंट्स. अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, if we arrange elements in increasing order of atomic weight, then every
eighth element show properties similar to that of the first, like here example is given: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and then sodium. उस टाइम नोबल गैसेस नहीं थी, इसके बाद नियॉन आता है, बट वहां नोबल गैसेस उस टाइम नहीं थी. तो सोडियम शो सेम प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ द लिथियम. ओके, दिस इज जस्ट लाइक टू दैट ऑफ सारे गामा पा धा नी फिर सा. तो म्यूजिकल ऑर्डर जो है उसके बेस पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को रखा था, देन एवरी एथ एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. बट ये भी न्यूलैंड भी 8 एलिमेंट्स के ग्रुप को सभी एलिमेंट्स की फॉर्म में सेटिस्फाई नहीं कर पाया, रख नहीं पाया. तो फिर उसके बाद आ गया साइंटिस्ट लूथर मेयर. लूथर मेयर ने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट. बट उसको रीजन नहीं बता पाया कि वाई एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज व्हेन दे कम्स इन द सेम फैमिली. फिर उसके बाद साइंटिस्ट जो आया, वो यहां से ज्यादातर हमें थोड़ा नॉलेज ज्यादा होना चाहिए. मेंडलीव. मेंडलीव्स ने क्या दिया? एक पीरियोडिक लॉ. ये आपको याद होना चाहिए. मेंडलीव्स गिव अस पीरियोडिक लॉ according to which physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic weight. Physical chemical properties repeat कर रही हैं. periodic function mean they repeat after certain regular interval. कुछ टाइम के बाद, जैसे हर साल जून में गर्मियां हो जाती हैं, हर साल जनवरी फरवरी में सर्दियां हो जाती हैं, तो वो रिपीट करने के बाद हर साल जनवरी में ही सर्दियां होती हैं, हर साल जून में ही गर्मियां होती हैं. तो उस ढंग से ही पीरियोडिक फंक्शन मीन रेपिटेशन अ पर्टिकुलर सर्टेन इंटरवल के बाद. फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों आ रही हैं? बिकॉज दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, बिकॉज दे आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट. बट प्रॉब्लम ये थी कि मेंडलीव्स डू नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ periodicity, why the properties become same when they comes in the same family. तो इस कारण कुछ सक्सेसेस भी थी. जो मेंडलीव्स था, मेंडलीव्स ने कुछ एम्प्टी स्पेस छोड़ दिए थे, खाली स्पेस, जहां पर पहले ही उसने कुछ एलिमेंट्स की के बारे में बताना शुरू कर दिया कि उस एम्प्टी स्पेस में कौन से एलिमेंट आएंगे, जिसके बारे में हमें पता होगा. एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन. एका मीन सिमिलर टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम के नीचे क्या है? जर्मेनियम. तो जर्मेनियम को उसने नाम दिया था एका एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन को नाम एका सिलिकॉन. सिलिकॉन के नीचे है जर्मेनियम, और एल्यूमिनियम के नीचे है गैलियम. सॉरी, एका एल्यूमिनियम किसके कारण है? गैलियम. और एका सिलिकॉन जर्मेनियम. तो इन कुछ सक्सेसेस के बारे में हम यहां थोड़ा पढ़ते हैं कि मेंडलीव्स ने कौन सी कॉन्ट्रीब्यूशन की है रिगार्डिंग द पीरियोडिक टेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही सिस्टेमेटिकली अरेंज द एलिमेंट्स, एंड ड्यू टू सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट so many elements are arranged in increasing order of atomic mass, so that उनका एटॉमिक मास जो है वो करेक्ट होना शुरू हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में. कुछ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास था कम था, कैलकुलेट करके आ रहा था, बट एक्सपेरिमेंटली उसका एटॉमिक वेट ज्यादा था, तो उसके अकॉर्डिंग ये अरेंज किया उसने. फिर है प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स. पहले ही उसने प्रिडिक्ट कर लिया था कि जो गैलियम है उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की तरह होगी, तो एका एल्यूमिनियम बोल दिया था गैलियम को. एंड जो जर्मेनियम था उसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन की तरह सेम थी. बट देयर आर सम डिफेक्ट्स इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आल्सो. फर्स्ट, की पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो आजकल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1 है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन.
दूसरा, देयर आर सम एनॉमलस पेयर। एनॉमलस मतलब जो होना नहीं चाहिए था, उल्टा उसने लिख दिया। क्या किया था उसने? आर्गन इज प्लेस्ड बिफोर पोटाशियम। आर्गन एटॉमिक नंबर 18 है, पोटाशियम 19, पर उसने क्या कर दिया था? आर्गन इज प्लेस्ड बिफोर पोटाशियम। सिमिलरली, क्यों जहां आर्गन का तो एटॉमिक वेट 39.9 है और पोटाशियम का है 39.1, तो अगर 39.9 आर्गन का एटॉमिक वेट है, उसको तो बाद में रखना चाहिए था, क्योंकि मैन लीव्स अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, और आर्गन का एटॉमिक वेट ज्यादा है तो उसको बाद में रखना चाहिए था, पर रख दिया उसने पहले, तो दैट्स व्हाई दैट पेयर इज एनॉमलस। नेक्स्ट उसकी मेजर ड्रॉबैक थी पोजीशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब मास नंबर अलग अलग है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। उन तीनों के लिए 3 जगह होनी चाहिए थी, क्योंकि इसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट रखा है। तो एटॉमिक वेट तो 3 आइसोटोप का 1, 2, 3 है, तो तीनों की पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए थी, वैसा नहीं रखा उसने, तो उसका जो कंसेप्ट था वो फेल हो गया। सम सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड। कुछ एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करते थे, वो अलग अलग रखे थे, एंड सम ऑफ द डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, उनको इकट्ठा रख दिया था। एंड नेक्स्ट ड्रॉबैक इज Mendeleev's do not explain the cause of periodicity, that why elements repeat their properties after certain interval, and position of lanthanoid and actinoid is not indicated by Mendeleev's. So we need a modern concept and modern periodic law. So that will be discussed in next lecture. Thank you.